Namaskar, good morning, and swagatam to all. I am Reena Suri from India Smart Grid Forum, and it is my privilege and pleasure to welcome you all to the 8th edition of Distribution Utility Meet, DUM 2024, hosted here in the vibrant city of Lucknow, Uttar Pradesh. With the permission of the dignitaries, we will begin the inaugural function for DUM 2024. DUM is a conference of the electricity distribution utilities or DISCOMs for a collaborative growth being organized by India Smart Grid Forum, Uttar Pradesh Power Corporation Limited, UPPCL, Uttar Pradesh Renewable and EV Infrastructure Limited, UPREV, and Energy Department of Uttar Pradesh Government. Namaskar and a warm welcome to this esteemed gathering today on behalf of ISGF, UPPCL, UPREV, and Energy Department of Government of Uttar Pradesh Government. I extend warm greetings to honorable ministers, respected officials from various ministries, regulatory commissions, and electricity utilities, distinguished industry leaders, esteemed delegates, and members of press and media. As we have gathered here today, and for the next 2 days, DUM 2024 will serve as a vibrant platform for sharing knowledge, experience, and breathtaking innovations. Experts will dive into key topics from grid modernization and renewable energy integration to artificial intelligence, blockchain, and enhancing customer services, with the shared goal of shaping a resilient, sustainable, and future-ready power distribution grid. Beyond exchanging ideas, this event is about strengthening relationships and fostering collaborations. Together, we are paving the way for a future where electricity not only powers our world, but serves as a crucial force for decarbonization. With those few words, I have the pleasure, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the dignitaries for the inaugural ceremony on stage. Please put your hands together in welcoming our chief guest, Honorable Minister of Power, Housing and Urban Development, Government of India, Shri Manohar Lalji. Very warm welcome, sir. Please also join me in welcoming Shri Rakesh Rathore Guruji, Honorable Minister of State for Urban Development, Uttar Pradesh. Very warm welcome, sir. Please put your hands together for Shri A.K. Sharma ji, Honorable Minister of Energy, Government of Uttar Pradesh. Namaskar, sir, and very warm welcome. Also, join me in welcoming Shri Arvind Kumar ji, Chairman, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission. Please welcome Shri Ranveer Prasad ji, Managing Director, Uttar Pradesh Transmission Corporation Limited. Please put your hands together for Shri Narendra Bhushan ji, Additional Chief Secretary, Energy, Government of Uttar Pradesh. Dr. Ashish Goyal, Chairman, UPPCL. Very warm welcome, sir. And Shri Pankaj Kumar ji, Managing Director, UPPCL. And lastly, Shri Reggie Kumar Pillai ji, President, India Smart Grid Forum. Esteemed dignitaries, to begin this important event with positivity and invoke the blessings of Almighty, let us now proceed with lamp lighting ceremony. I have the privilege of inviting our honorable ministers and esteemed dignitaries on the dais to this auspicious moment.
Music. Music. Ajay. I request the photographers to please make way for the video. Our audience is not able to see the ceremony. Thank you so much, our Honorable Minister, sirs, and dignitaries for beginning the distribution utility meet by lighting the lamp. May this light guide our discussions and decisions together, a brighter, sustainable future for India's power sector. So with your permission, we now present a brief film on Uttar Pradesh Power Corporation Limited and UPREV, showcasing the tremendous progress made by Uttar Pradesh power sector in the recent past under the dynamic leadership of Shri माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई सौभाग्य योजना ने अकेले उत्तर प्रदेश में 62 लाख घरों में उजियारे का गृह प्रवेश करवाया। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है उजाले की, खुशियों की और मुस्कुराते नए सपनों की उड़ान की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलावों का साक्षी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई सौभाग्य योजना ने अकेले उत्तर प्रदेश में 62 लाख घरों में उजियारे का गृह प्रवेश करवाया। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विद्युत वितरण, पारेषण एवं उत्पादन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बन रहे हैं। कुछ साल पहले बिजली कटौती से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अथक प्रयास किए और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को 8 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तक पहुंचा दिया। आज प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहां बिजली की मांग एवं आपूर्ति दोनों ने नए कीर्तिमान बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अधिकतम विद्युत मांग 30,600 मेगावाट तक पहुंची है एवं ऊर्जा विभाग द्वारा इसकी सफलतापूर्वक आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई और प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़कर 70,000 MVA तक पहुंच चुकी है, जो राज्य को और ज्यादा बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 3.50 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिनके लिए प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 744 नए विद्युत उपकेंद्र बने, 1594 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में 188 नए विद्युत उपकेंद्र बने एवं 762 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई। आधुनिक विद्युत उपकेंद्र, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और गैस इंसुलेटेड स्विच गियर टेक्नोलॉजी के उपयोग से विद्युत वितरण को और सुरक्षित एवं प्रभावी बना रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल करते हुए ऊर्जा विभाग ने 3 नए थर्मल प्लांट लगाए हैं। प्रदेश के पास अगले 10 सालों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कार्य योजना है। 5 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, जिनके पूरा होने के बाद उत्पादन क्षमता 10,000 मेगावाट को पार कर जाएगी। जल्द ही 3 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए समाधान शामिल किए जा रहे हैं। सौर एवं जैव ऊर्जा के कई नए उपक्रम स्थापित किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन
2558 मेगावाट से बढ़कर 5419 मेगावाट तक पहुंच गया है। यूपी पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं देने के लिए एक विशेष कंपनी UPREV की शुरुआत की है। अयोध्या को पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर संचालित करने की अग्रगामी परियोजना पर तेज गति से काम किया जा रहा है। किसानों के नलकूपों के लिए पृथक घोषकों के माध्यम से समुचित एवं निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आज आम आदमी को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। बस एक क्लिक पर यह काम झटपट हो जाता है। उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश मित्र का साथ है जो उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। और अगर फिर भी कोई शिकायत है तो 1912 है ना, जिस पर कॉल करके शिकायत दर्ज और उसका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। 2019 के कुंभ में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब 2025 के महाकुंभ के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा विभाग बिना रुकावट बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो आइए इस पवित्र महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। अब घर आंगन रोशन है और प्रगति अपने पंख फैला रही है। ये एक विश्वास है कि बिजली से तरक्की की नई राह बन रही है। आज उत्तर प्रदेश उन्नति की यही कहानी पूरी दुनिया से कह रहा है। Thank you. And next, we have a brief film on India's Smart Grid Forum, highlighting some of the groundbreaking projects executed in the recent past, which will transform India's power sector through advanced technologies. Let us take a look. Welcome to the India Smart Grid Forum, a globally reputed think tank spearheading India's energy transition, electric mobility, and grid modernization. Established in 2011 as a public-private partnership by the Government of India, ISGF has been at the forefront of policy advocacy for revolutionizing India's electric grid and shaping a greener, more sustainable future. ISGF mission is to bring together key stakeholders covering policymakers and regulators, utility leaders and industry experts to drive innovation and deliver solutions that can integrate renewable energy, electric vehicles and emerging digital technologies into India's power grid efficiently and at scale. As in the past decade, during the last year ISGF launched several groundbreaking initiatives that are reshaping India's electricity landscape. One such project is the Vehicle-to-Grid V2G demonstration, which will showcase how surplus power on the grid during off-peak hours can be stored in the batteries of electric vehicles and released back to the grid during peak hours to support the grid to balance supply and demand. This technology will soon be demonstrated in Delhi and Kerala, and it marks a huge step forward in our pursuit of sustainability goals. Millions of EVs connected to the grid can be aggregated as virtual power plants, VPPs. We will also demonstrate charging of EVs with green electricity, reducing the carbon footprint of transportation sector. ISGF is also driving innovation in agriculture sector, focused promotion of electric tractors. This initiative will help creating a roadmap for the transition to sustainable farming practices. By electrifying the agricultural sector, we aim to reduce the carbon footprint to achieve net zero and enhance farmer livelihoods. Another critical area of focus is peer-to-peer, P2P, trading of green energy from solar rooftops on blockchain platform. By empowering consumers to directly trade renewable energy within local communities, we are transforming how electricity is generated and consumed. This decentralized model promotes grid resilience, reduces energy costs, and accelerates renewable energy adoption across the country. ISGF had undertaken the very first P2P pilot project in Lucknow in 2020, which was the first such blockchain project in the power sector in South Asia.
Also, UP issued regulations for P2P trading of rooftop solar energy in 2023, which was first such regulations globally. Today, 3 states in India have issued P2P regulations, and few more are expected to issue such regulations. Very soon, we will see millions of people generating green energy on their rooftop solar systems and selling to their neighbors and friends. ISGF has undertaken a detailed study on the impediments in development of renewable energy in the northeast region of India and suggested implementable solutions how such impediments can be removed and renewable energy resources can be developed on fast track in any year. Another groundbreaking project ISGF has undertaken is preparation of a national registry of solar rooftop systems. Presently, there are about 8 Next Plus solar rooftop systems connected to the low voltage grid. The cumulative capacity of these systems is about 12 gigawatts, which produces more than 40 gigawatt hours energy every day. Since power system operators have no visibility about these distributed systems connected to the grid, the generation from solar rooftops are not considered in the daily scheduling and dispatching operations. With the new PM Surya Ghar Yojana, with the target of 10 million solar rooftops, the situation will exacerbate. To manage these fast increasing solar rooftop units, ISGF is building a national registry of solar rooftops, which will capture and depict the details of all the rooftop solar units, feeder-wise and distribution transformer-wise. The architecture of the registry is such that it can be enhanced to include all the distributed energy resources connected to the grid. Last year, we have successfully demonstrated transportation of goods by electric trucks on industrial corridors in North India, and submitted a host of recommendations to electrify the goods transportation sector. Last year, we had undertaken a very successful asset mapping of 22 kV lines in Pune and Thane using drones and artificial intelligence-powered analytics. At the India Smart Grid Forum, we are not just modernizing the grid, we are building the foundation for a greener, smarter, and more sustainable India. By harnessing the power of technology, innovation, and collaboration, we are making the vision of a clean energy future a reality. Thank you. And now to commence today's program, may I have the pleasure of inviting Shri Rejikumar Pillai, President ISGF, to extend a very warm welcome to all our dignitaries, distinguished guests, participants to Distribution Utility Meet. Over to you, sir. Honorable Minister of Power, Housing and Urban Development, Government of India, Sri Manohar Lal ji, Honorable Minister of Energy, Government of Uttar Pradesh, Sri A.K. Sharma ji, Honorable Minister of State for Urban Development, Government of Uttar Pradesh, Sri Ragesh Thakur Guruji, and all other dignitaries on the dais, our esteemed speakers, senior officials, and members of the media in the audience, we extend a very warm welcome to all of you to DAM 2024. Today, India operates the third largest and fastest growing and the most complex power system in the world. And the demand is growing at rapid pace. The Saubhagya program, which has successfully brought universal electrification, and with 7% plus economic growth, GDP growth, the people's demand is increasing. And more than that, electrification has emerged as the central theme for decarbonization in all countries, including India, and we are electrifying sectors like transportation, agriculture, and industry, and several other sectors. The demand is expected to triple in next 10-15 years. And last month, the Honorable Minister Sir had unveiled a new plan, transmission plan, which talks about the current generation capacity of 452 gigawatt growing to 2,100 gigawatt by 2047. It's almost 4 times, 5 times growth in the coming years. While we have a very modern and intelligent high voltage transmission grid, we have problems with the distribution grid,
we extended universal electrification, but struggling to give a 24/7 supply. The distribution grid modernization is one of the main priorities of the country. In 2002, 2003, for the first time, we estimated the network losses in the distribution grid. We call it AT&C losses at 36%. But today it stands, in 2 decades, we brought it down to 15%. This 21% reduction in AT&C losses translate to about 300 billion units of electricity, a saving of 300 billion units, even at a modest input cost of 3 rupee per kilowatt hour. It's equivalent to 90,000 crores every year, and this number is increasing. That's a great job we have done, and kudos to the leadership of the power sector and all the officers and engineers and technicians who worked in the sector. India Smart Grid Forum assisted DISCOM to adopt new technologies towards efficiency improvement, loss reduction, reliability improvement in power supply, and also customer services. So we initiated this distribution utility meet in 2017 in Bangalore, then next year it was in Bombay, then in Delhi. 2 years, thanks to COVID, it was in virtual platform. People from around the world could attend. And thereafter in 22, we did it along with Tata Power in Orissa, and then we moved to Kochi last year, and we are very delighted and honored to partner with the UP Electricity Department and also UPPCL to bring them to the historic, beautiful city of Lucknow, which is the only city which I often say every month when I come here, I see more development. Last 5-7 years, the maximum development I see around the country, and Lucknow has emerged as a very livable and cleaner city. And I at times tell Lucknow could give a competition to Indore. Indore is elected for the last several years as the cleanest city in India, and Lucknow may be number 2. You should really compete next year, could come even number 1. So we are very delighted to have them here, and many of you who have come from airport to this hotel have not seen the city. Please go around and see how Lucknow has developed in the past couple of years. So, respected Manohar Lal sir, your 2 predecessors, Sri Piyush Goyal ji and Sri R.K. Singh, under the guidance of Honorable Prime Minister, has undertaken groundbreaking initiatives in development of the power sector. Both MOP and MNRE are working 24/7, 365 days, launching new programs and projects. Within a short span of 4-5 months, you have accelerated the tempo in the power sector and giving a great leadership. During your first term as Chief Minister in Haryana, you wanted to build a smart grid in Gurgaon, got a plan made. And also, one very important policy issue which you have made was all buildings, new buildings in Haryana, more than 500 square yard, will have mandatory 1 kilowatt rooftop solar. These are groundbreaking initiative you have taken, and we are honored to have you as our power minister and look forward to your leadership in taking India power sector forward. We extend a very warm welcome to you, sir, for DAM 2024. Respected Minister of Energy, Sri Arvind Sharma ji, you helped us to make this event a successful, what you are seeing today, right from the beginning. First time when I came along with Ashish ji and met you in January this year, onwards you've been guiding us and supporting us with your help and support. It's a successful program here. In the interest of time, I brief my address. I will extend a very warm welcome to Sri Arvind Kumar ji, ACS Energy in UP, Sri Narendra Bhushan ji, Sri Ashish Goyal ji, Chairman UPPCL, and Mr. Ranveer Prasad, MD of UP Transco, and Sri Pankaj Kumar, MD of UPPCL. I also take this opportunity to welcome senior officials, DISCOM leaders, our supporting organizations and exhibitors and friends from the media. I have already. We also seek blessings of respected Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath ji, who supported and extended all help for this event, but could not be present here today owing to last-minute changes in his schedule. Thank you very much and wish you a very successful 2 days of deliberations.
Thank you so much, Shri Pillai ji. And to formally commence today's program and again extend a very warm welcome uh, and present his address, I have the pleasure of inviting Dr. Ashish Goyal ji, Chairman UPPCL. Please put your hands together for sir. सुप्रभात। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय विद्युत मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी, ऑनरेबल चेयरमैन यूपीईआरसी, एसीएस एनर्जी एंड माय डियर कलीग्स, और यहाँ हॉल में उपस्थित पूरे देश से पधारे हुए स्टेट डिस्कॉम्स के, प्राइवेट डिस्कॉम्स के, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, मीडिया पर्सन्स, आप सभी का उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, ये नॉलेज शेयरिंग के लिए, चैलेंजेस को, आपस में चुनौतियों को किस तरह से हमें आगे उनका सामना करना है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और तीसरे दिन फिर शनिवार को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन का भी कार्यक्रम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लखनऊ का जो आज आपका ट्रिप है, ये प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी आपके जीवन में एक यादगार क्षण रहेगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये 8वां संस्करण है, 8वीं मीट है, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट, और मुझे बहुत हर्ष है यूपीपीसीएल और यूपी का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसको इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के साथ पार्टनरशिप करके ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मौका मिल रहा है। और आप सभी को यहाँ पर लखनऊ में हमें मेजबानी का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ जो डिस्कॉम्स के सामने चैलेंजेस हैं, उन सभी के बारे में, जो इश्यूज हैं उनके बारे में हमें आपस में चर्चा करने का मौका मिलेगा। उसी के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस की थीम्स बहुत ही रेलेवेंट रखी हैं। सबसे बेसिक थीम हमने रखी है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्कॉम्स, कि डिस्कॉम्स इतने घाटे में है तो किस तरह से हम पब्लिक को सेवाएं दे सकें कंटिन्यूअसली भविष्य के लिए, किस तरह से डिस्कॉम चलाई जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है 24 घंटे बिजली का सभी की तमन्ना है, सभी पब्लिक चाहती है 24 घंटे बिजली दी जाए, अच्छी दरों पर दी जाए, लेकिन इस काम को कैसे करना है कि कंज्यूमर की जेब पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और डिस्कॉम भी जो है चलती रहें और सरकार के खजाने पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये मुख्य थीम है आज और कल के कॉन्फ्रेंस की। बाकी कुछ समय सामयिक विषय हैं, रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स, स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटलाइजेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि ये क्षेत्र, पूरा बिजली का क्षेत्र अब केवल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र नहीं रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये बहुत सारे चीज़ें जो है हमारे क्षेत्र को इम्पैक्ट करेंगी। और ये भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक माइनर चीज़ होगी और टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट एक बहुत मेजर एरिया हो जाएगा। इसी तरह से ईवी चार्जिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय उभर कर आ रहा है। तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में थीम है, और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए क्या चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, उसका भी एक बहुत बड़ा थीम है। तो इन थीम्स पर मुझे उम्मीद है कि एक बहुत सार्थक रेलेवेंट चर्चा होगी और इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सभी डिस्कॉम्स के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे और हम कुछ सॉल्यूशंस को अपने सभी मेंबर्स के बीच में शेयर करने के स्थिति में होंगे और ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इस बार हमने डम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले डम तक एक पैनल डिस्कशन का फॉर्मेट था। इस बार हमने ये चेंज किया कि हर सेशन में लगभग आधा समय प्रेजेंटेशंस का होगा। जो सेक्टर के एक्सपर्ट्स या जो रिलेवेंट ऑफिशियल्स हैं वो पहले प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि लोगों को आइडियाज़ मिलें, नॉलेज हो, और बाकी आधा सेशन जो है वो पैनल डिस्कशन का होगा कि उस सेक्टर के बारे में या जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं उसके बारे में
डिस्कशन हो सकें। तो ये एक थोड़ा सा चेंज इस बार फॉर्मेट में किया गया है और हमें उम्मीद है कि इससे जो है हमारे डेलीगेट्स को फ़ायदा होगा। आप सभी यूपी में बैठे हैं। एक ज़माने में यूपी माना जाता था कि बिजली नहीं आती है, और आज जब बिजली जाती है तब वो न्यूज़ बनता है। तो आज जितने भी अखबार आप देखेंगे, बिजली जाने की न्यूज़ होती है, बिजली आने की न्यूज़ नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में आया है कि जब हम निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में सक्षम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस गर्मियों में, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, हम लोगों ने मार्च, अप्रैल, मई, जून 24 घंटे गाँव को शामिल करते हुए बिजली निर्बाध रूप से आपूर्ति की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है 30,618 मेगावाट का और 670 मिलियन यूनिट्स का एक दिन में सप्लाई करने का, जो देश में सर्वाधिक है। और हमने महाराष्ट्र को भी और गुजरात को भी बिजली सप्लाई में पीछे छोड़ दिया है। और इसमें मेरे सभी साथी, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एमडीज, हमारे बिजली यूपीपीसीएल, ट्रांसको, जनरेशन के सारे मेरे अधिकारी कर्मचारी, इस पूरी टीम वर्क के लिए जो है सभी को मैं बधाई दूंगा। अगले 10 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली की आवश्यकता है 2034 तक, उसका हमने रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बना लिया है। और न केवल बना लिया है बल्कि उस पर हमने अमल भी शुरू कर दिया है। हमारे टेंडर्स निकल चुके हैं। एक 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का ऑलरेडी बिड्स फाइनल हो गई हैं। 2000 मेगावाट सोलर, 4000 मेगावाट हाइड्रो, 2000 मेगावाट पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, इन सभी के टेंडर्स हमारे निकल गए हैं। और अगले 10 साल की आवश्यकताओं के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट हमें करना है, हम अगले 1 वर्ष के अंदर, हमारा प्लान है कि उसको प्रोक्योरमेंट करके हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर दें। मैंने कोची में 2023 में डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में मैंने प्रतिभाग किया था। वहाँ पर 3 जो है मेरे उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो था कि अगली डम जो है उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आप सभी को स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि अगली डम जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। एक दूसरा प्रण मैंने लिया था कि अगले डम से पहले हम उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग के लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बनाएंगे। तो वो कंपनी 21 मई को लॉन्च हो गई है, उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल्स एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये कंपनी डेडिकेटेड तरीके से ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे प्रदेश में स्थापित करने का कार्य करेगी। और एक तीसरा हमारा उद्देश्य था कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ डिस्कॉम्स हम बनाएं, AIDA, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस प्राइवेट डिस्कॉम से भी और स्टेट डिस्कॉम से भी मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी हमें आशीर्वाद मिला है। तो हमने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी पेपर सबमिट कर दिए हैं। और इसमें प्रथम प्रेसिडेंट श्री लोकेश चंद्रा जी, महाराष्ट्र के CMD, जो आज उनको विदेश जाना था तो आज नहीं आ पाए हैं, तो वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे और मैं जनरल सेक्रेटरी रहूँगा। और जैसे जैसे हमारे मेंबर्स बन जाएंगे तो हम फॉर्मली जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी उसकी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कॉन्फ्रेंस में आकर आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Goyal, for your visionary address and for providing a brief about the overview of what follows today and tomorrow with DAM and on Saturday, and for all the guidance and support that you've been extending for DAM, and as well as all the wonderful initiatives you have undertaken. And many congratulations, sir, to you and UPPCL team for that. So, ladies and gentlemen, we now have the privilege of hearing from our esteemed dignitaries who will be sharing their perspective on the future of India's energy landscape. I have the pleasure and honor of inviting Shri Narendra Bhushan ji, Additional Chief Secretary, Energy, Government of Uttar Pradesh, to deliver his special address. Very warm welcome, and please put your hands together for sir. नमस्कार। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की 8वीं वार्षिक मीट के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास के मंत्री
श्री शर्मा जी, शहरी विकास के माननीय राज्य मंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के रेगुलेटर श्री अरविंद जी, मेरे साथी अधिकारीगण आशीष, रणवीर, पंकज और यहाँ पर इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, को होस्ट की भूमिका निभाने वाले इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के अध्यक्ष श्री पिल्लई जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य राज्यों के आए हुए सम्मानित ACS, PACS, PS राज्यों के अन्य अधिकारीगण, डिफरेंट यूटिलिटीज़ के जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र की दोनों तरह की यूटिलिटीज़ हैं, उनके चेयरमैन, उनके MDs, उनके अन्य अधिकारीगण, डायरेक्टर्स, यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न संगठनों, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, भारत सरकार के पावर मंत्रालय के अधिकारीगण, अन्य सभी यहाँ पर थॉट लीडर्स, पॉलिसी प्लानर्स, स्टेक होल्डर्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आशीष ने कहा, ये एक अवसर है जो बाहर से लोग आए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग लखनऊ और अयोध्या को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा अयोध्या में 22 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तो उसी दिन श्री राम भगवान सूर्यवंशी भगवान हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन उनकी प्रेरणा से PM सोलर जो है योजना को लागू किया था कि प्रत्येक भारत के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप योजना को लागू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से भी हमको प्रेरणा देते हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ है जहां एक और इसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, परंतु बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इस प्रकार की जब वार्षिक मीट हम करते हैं तो उसमें इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए हम ऐसे निष्कर्षों पर निकलते हैं जो राज्य सरकार के लिए, जो रेगुलेटर्स के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए उसमें जो अमृत मंथन होता है, उसके आधार पर आम जनता को, कंज्यूमर्स को उसका लाभ मिलता है। और ऐसी ही कड़ी में जैसा कि आशीष ने अभी डिटेल में बताया, ये एक आयोजन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसमें केवल 3-4 बिंदु आशीष ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन बिंदुओं को फ्लैग किया है जो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर डिस्कस होंगे और उनमें रिजल्ट आएंगे। कुछ इश्यूज में और फ्लैग करना चाहता हूँ। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्कॉम के बारे में आशीष ने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मिश्रण जो सरकारी क्षेत्र की यूटिलिटीज और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज का है, उनका एक फ्रेमवर्क, उसका एक इंसेंटिव सिस्टम, उसमें जो कार्य करने की एक पद्धति, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके बीच में जो गैप है उसको किस तरह से ब्रिज किया जाए, दोनों सेक्टर किस प्रकार से एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। आई थिंक उसका एक बहुत अच्छा निचोड़ यहाँ पर निकलेगा। टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर का सेंटरपीस बनता जा रहा है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रही है। हम लोग स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, परंतु जो दुनिया को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट ग्रिड इत्यादि, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। आज हर व्यक्ति, हर न्यूज़पेपर, हर चैनल AI और जनरेटिव AI की बात कर रहा है, परंतु आवश्यकता यहाँ पर इस बात की होगी कि किस प्रकार से उसके बेनिफिशियल यूज को हम लोग एक्चुअली क्षेत्र में अडॉप्ट कर पाए। कहा जाता है कि जनरेटिव AI का सबसे लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पर क्लाइंट इंगेजमेंट होगा। एक जनरेटिव प्लेटफॉर्म, AI प्लेटफॉर्म एक साथ हजारों कंज्यूमर्स की शिकायत को अटेंड कर पाएगा, पर वहीं और जो आउटबाउंड कॉल के तौर पर उनकी फीडबैक ले पाएगा, उनकी समस्याओं को हल कर पाएगा। परंतु उसको कितनी जल्दी, कितने इफेक्टिव ढंग से हम सिस्टम में इंटीग्रेट कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जब हम इन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, इनके बेनिफिशियल यूज हैं, वहीं पर आपको देखना होगा कि ये टेक्नोलॉजीज बहुत बड़े चैलेंजेस भी हमारे सामने थ्रो करती हैं। वन नेशन वन ग्रिड के मामले में हम आई थिंक दुनिया में बहुत आगे हैं, परंतु ये इंटरकनेक्टेड ग्रिड में जब साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज आएंगे, उनको भी बहुत ही इफेक्टिव ढंग से हमें हैंडल करना होगा। और आई थिंक उस पर भी जो है ये फोरम ध्यान देगी और कुछ ऐसी संस्तुतियां हमारे सामने प्रस्तुत करेगी जो बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की मैंने बात करी, परंतु जब इन डिस्कॉम्स की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स का बिहेवियर, उसको किस प्रकार से चेंज किया जाए।
आप देखेंगे कोई भी कंज्यूमर, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति, वो कुछ भी बाजार में खरीदने जाता है तो पहले उसकी वैल्यू को पे करता है। परंतु इलेक्ट्रिसिटी शायद ऐसी पॉलिटिकल कमोडिटी है जहां पर उसका जो है पूरा भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके अन्य इशू भी हैं, परंतु ये बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रोबेबली हमें एक इंक्रीमेंटल अप्रोच से हटकर, एक पैराडाइम शिफ्ट से हटकर, हो सकता है हमें पैराडाइम रिवर्सल पर जाना पड़े। ऐसी कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़े। इनोवेटिव सॉल्यूशंस तब आते हैं जब दो सेक्टर इंटरेक्ट करते हैं। आपने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरेक्शन हर सेक्टर के साथ देखा है कि उसने दुनिया को बदल दिया है। मैं यहाँ आपके सामने ये प्रपोज करना चाहूँगा कि यहाँ भी टेलीकॉम सेक्टर की तरह एक यहाँ पर भी जो है, जिसके बारे में निश्चित तौर पर सेक्टर में चर्चा हो रही है, टेलीकॉम सेक्टर का एक क्रॉस सेक्टर इनोवेशन को यदि हम यहाँ पर लाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर हमारी दुनिया में एक ऐसी उदाहरण है कि यहाँ पर हमने आई थिंक दुनिया में सबसे सस्ता टैरिफ ना केवल सुनिश्चित किया है, परंतु सबसे बड़ी बात, इंडिया के कोने कोने में गरीब से गरीब व्यक्ति को, रिक्शा वाला से लेकर इवन भिखारी तक को हमने टेलीकॉम की एक्सेस उपलब्ध कराई है, उसके रोजगार में, उसकी इंफॉर्मेशन में हेल्प करी है। क्या उसी प्रकार से हम इस प्रकार से कि डिस्ट्रीब्यूशन को मे बी सप्लाई से अलग कर दम के साथ एक सम बनाकर, सप्लाई यूटिलिटी मीट बनाकर, ताकि वहां पर भी ये सप्लाई कंपनीज जब आएंगी और जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है वो दम से सम में शिफ्ट हो जाएगा और वो कंज्यूमर को ना केवल ऐसी पावरफुल चॉइसेस दे पाएंगी कि किस प्रकार से 10 रुपए में वो अपने प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करके, जब उसको जरूरत है, जब उसके घर में मेहमान आता है या उसके बच्चे ने 1 घंटे के लिए पढ़ना है, तो उस टाइम अपनी बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकता है। तो ऐसे भी कुछ विषय जो इनोवेटिव लीग से हटकर उन पर चर्चा करनी होगी, ताकि फ्यूचर में हम पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु के तौर पर एक मॉडल बन सके। ये भी मेरा रिक्वेस्ट है। उसी प्रकार से एटीसी के इश्यूज, बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी, इन इश्यूज पर जो कि बहुत पुराने हैं परंतु आज भी उतने ही सेंट्रल हैं, उन पर हमें चर्चा करके उनके बारे में सीखना होगा। एनर्जी ट्रांजिशन आई थिंक बहुत तेजी से, उसकी स्पीड को हम किस प्रकार से मैच कर पाएं, ये बहुत जरूरी है। और एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज के तौर पर भी उभर कर आएगा और एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तय किए हैं कि विकसित भारत 2047 तक, जो भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एक पंच अमृत के माध्यम से एक कमिटमेंट दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस हाल में बैठे हुए जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर पड़ेगा, नेट जीरो बाय 2070, विच मीन्स हमें कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन को पूरी तरह से आउट करना होगा। 50% ऑफ एनर्जी बास्केट में रिन्यूएबल्स का योगदान बाय 2030, विच इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। तो उसके बारे में भी एक हमें बहुत ही जल्दी उसमें चैलेंज ये है, हम लोग पकड़ रहे हैं कितनी स्पीड से हम उस एनर्जी ट्रांजिशन के साथ अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसी प्रकार गाइडिंग प्रिंसिपल में हम सब लोगों के सामने 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश बाय 2027 का टारगेट रखा है। यहाँ पर निश्चित तौर पर हर राज्य से, आई थिंक हर राज्य ने भी अपने लिए इसी प्रकार के लक्ष्य स्थापित किए हैं। इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, जैसा कि आशीष ने कहा, एसोसिएशन ऑफ डिस्कॉम्स का एक बहुत ही एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और जब मीटिंग ऑफ द माइंड्स होता है, जब 1+1 11 बनता है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को सीखना, एक स्टेट से दूसरी सेक्टर, निजी क्षेत्र से सरकारी सेक्टर में, इस प्रकार से जो लर्निंग्स का एक, उससे बहुत सारी इनोवेशंस निकल कर आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज पुनः से मैं आप सबका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Shri Bhushan ji, for your leadership and your visionary address. Now I have the pleasure of inviting Shri Arvind Kumar ji, Chairman, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission. Sir, over to you for your special address. Please put your hands together for sir. आज इस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल खट्टर जी,
मेरे बैचमेट एवं राज्य के माननीय मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री जी, सर जी सर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आशीष गोयल जी, श्री पंकज कुमार जी, रणवीर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न राज्यों के एसीएस एनर्जी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक और प्राइवेट यूटिलिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और मेरे रेगुलेटरी कमीशंस के कुछ साथी, जिसमें चेयरमैन छत्तीसगढ़ को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ श्री हेमंत वर्मा जी, कई रेगुलेटरी कमीशंस के मेंबर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक अच्छा सम्मिश्रण यहाँ पे है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटर्स और यूटिलिटीज़ का, और ये बड़ा ही अप्रोप्रिएट एक प्लेटफॉर्म है जिसकी 8वीं मीटिंग आज यहाँ पे ISGF और UPPCL के सहयोग से हो रही है। और बड़े ही रेलेवेंट टॉपिक्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो रेलेवेंट हैं और जो चैलेंजेस सामने हैं वो आप लोगों ने पिकअप किए हैं। उसके लिए मैं आप सभी को और स्पेशली दी ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये फोरम प्रोवाइड किया है एक, जिसमें कि एक्सपीरियंस शेयरिंग हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग हो सकती है। इसी वैसे तो बहुत ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे इंटरेक्शन होता है, बस उसमें उतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, उतने खुल करके एक दूसरे से डिस्कशन नहीं हो पाता जिसमें फिजिकल मीटिंग्स इस तरह के जो फोरम्स प्रोवाइड करते हैं उसमें हो पाता है। इसमें 1-to-1 कनेक्शंस भी बिल्डअप हो पाते हैं, आप साइड लाइंस में भी डिस्कशंस कर सकते हैं जिससे कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस और बेहतर होता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे, जो पावर सेक्टर है उसने काफ़ी ट्रांजिशंस विगत में और काफ़ी वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस डील किए हैं। सबसे पहले जो हमारा चैलेंज था वो एक्सेसिबिलिटी को लेकर के था। गाँव में, दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं था तो पावर सप्लाई करने की भी दिक्कत थी। अब भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकारों के इनपुट से, ग्रांट से वो लगभग अब नगण्य हो गई हैं। अब कुछ है कि छोटी कहीं पे ही छिटपुट बस्तियां बची हैं जहां पे अभी एक्सेसिबिलिटी की हो सकता है इशू हो, बट 100% कवरेज जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर का। पहले पावर उपलब्ध ही नहीं थी, अगर आप सप्लाई भी करना चाहें तो आपको रोस्टिंग करनी ही पड़ती थी बिकॉज इट वाज नॉट अवेलेबल। सो जब से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सरकारों ने अपना रेगुलेटरी रजीम, पॉलिसी रजीम ओपन अप किया और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हुआ, उनके लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। लेटेस्ट जो हैं जैसे लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स हैं, उनके आने से भी जनरेशन में लोगों की इन्वेस्टमेंट की रुचि बढ़ी, क्योंकि उनको अब अपने दिखे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके रिटर्न सिक्योर होंगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। और आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के एट पार हो गया है और धीरे धीरे ऑब्वियस है कि उसमें ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है वो इशू भी हम लोग अब रिजॉल्व कर चुके हैं। जो तीसरा बड़ा मुद्दा था वो अफोर्डेबिलिटी का है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ पावर। वो अभी भी हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है और उसमें भारत सरकार ने स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस और राज्य सरकारों ने कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, ग्रांट्स भी प्रोवाइड करी हैं। उसमें PM कुसुम योजना हो या PM सूर्यघर योजना हो या रूफटॉप सोलर पावर की स्कीम हो या DRE रिलेटेड उसके जितने भी इंसेंटिव्स हैं, वो जितने भी सरकार की तरफ से संभव हो सकते थे वो राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने दिए हैं। सो अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है RE पावर को हम कैसे हैंडल करें और RE पावर का इंटीग्रेशन हम कैसे सुनिश्चित करें। जैसा अभी नरेंद्र जो ACS एनर्जी ने भी बताया कि COP26 के जो गोल्स हैं उसमें जो भारत ने अपने लिए NDCs को कमिट किया है वो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हमारे लिए हैं, पूरे राष्ट्र के लिए हैं, जिसमें 500 गीगावाट की पावर हमारे को 2030 तक नॉन फॉसिल पावर जो है वो जनरेट करनी है। और उस दिशा में जनरेशन साइड में तो उतने चैलेंजेस नहीं दिखते, लेकिन उसकी कंजम्पशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसके सापेक्ष जो थर्मल जनरेशन है, जो ट्रांसमिशन है, जो इवैक्यूएशन ऑफ उस पावर के, उसको लेकर के जो चैलेंजेस हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के सामने जो चैलेंजेस हैं, चूँकि वो पावर इंटरमिटेंट है
वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करें, वो सबसे बड़े चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं। और उसको लेकर के डिस्कॉम्स की वायबिलिटी कैसे बनी रहे साइमल्टेनियसली, और कंज्यूमर को हम चीपर पावर और रिलायबल पावर कैसे दें, वो हमारे लिए आज सबसे बड़े चैलेंजेस के रूप में उभर करके सामने आया है। तो जनरेशन और ट्रांसमिशन के तो अलग चैलेंजेस हैं, उनको यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ की अहमियत है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं। अब अगर मैं यूपी की ही एक एग्जांपल लूँ तो यूपी का जो लोड कर्व है वो थोड़ा लॉपसाइडेड है। कई स्टेट्स जहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे फिर भी आरई पावर को कंज्यूम करना ईजियर है। लेकिन जहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन प्रीडोमिनेंट है, जहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कम है, वहाँ पे आरई पावर को कंज्यूम करना और आरपीओ ऑब्लिगेशंस जो काफ़ी एम्बिशियस भारत सरकार ने ले डाउन करी हैं, जहाँ अभी हम 15% तक आरपीओ यूपी के केस में एक प्रिस्क्राइब कर रखा था, अब वो बढ़ करके 29% के करीब अचीव करना है। सो इट रियली इज़ ए बिग चैलेंज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जहाँ पे थर्मल पावर की भी आपके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हो, कमिटेड हो, अब उसको बैक डाउन करके आरई पावर को कैसे लें और कैसे उसके बावजूद अपनी वायबिलिटी बना करके रखें, आपकी ओवर कमिटमेंट भी ना हो जाए कि आपने ज़्यादा पावर टाई अप कर ली तो आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी अब हो गई। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बहुत बड़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के लिए, और उसके बारे में हम सभी को देखना है कि हम जो सोलर आवर्स में कंजम्पशन है उसको कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम किस तरह की चीज़ें इनोवेट करें उसकी कंजम्पशन को लेने के लिए, और डीआरई सोर्सेज को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उससे पावर की कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हम हैंडल कर सकते हैं, उसको ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। और जो सब्सिडाइजिंग कैटेगरीज हैं उनके ऊपर लोड कम हो, और सब्सिडाइज कैटेगरीज में आप रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन बोथ उनको प्रोज्यूमर बना करके या उनकी कंजम्पशन बढ़ा करके आप पावर की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस रख सकते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो एक सबसे बड़ा चैलेंज और मैं देखता हूँ जो आपने टॉपिक में भी आज एनलिस्ट किया हुआ है, वो है डिजिटलाइजेशन के यूज़ हम कैसे करें। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे पास में वो है डेटा अवेलेबिलिटी, फीडर मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटरिंग, कंज्यूमर्स की टैगिंग डीटी वाइज फीडर वाइज जो है, अगर ये सारी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब कंज्यूमर्स का अगर आप नंबर देखें यूपी में तो लगभग 3,35,00,000 के करीब कंज्यूमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने सारे कंज्यूमर्स का अगर हमें कंजम्पशन पैटर्न देखना है और उसके हिसाब से अपनी रिसोर्स प्लानिंग करनी है, रिसोर्स एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट देखनी है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, तो वो 15 मिनट का डेटा अगर हमारे को नहीं मिलेगा कंज्यूमर्स का, तो ना तो आप टीओडी की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप टाइम ऑफ द डे मीटरिंग, रेगुलेटर्स के लिए भी चैलेंज है कि अगर डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है और मैं अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ, किस टाइप के कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, उसको मैं क्या टीओडी इंसेंटिव दूँ। टीओडी इंसेंटिव्स का तभी फायदा है जब डिमांड शिफ्टिंग पॉसिबल हो और उसको मैं डे टाइम में ला सकूं, जिससे मैं डे टाइम में कंजम्पशन बढ़ाऊं। बट टुडे इफ आई लुक एट द डेटा अभी डिस्कॉम पेरीफेरी पे भी 15 मिनट का डेटा इंटरवल का अवेलेबल नहीं है। तो कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटरिंग हो, उसको हम पुश करें, उसका फिर 15-15 मिनट का डेटा हमारे पास में आए, उसको फिर हम यूज़ करके अपनी फोरकास्टिंग को एक्यूरेट कर सकें, उसके हिसाब से हम अपनी रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग कर सकें और उसी के हिसाब से हम जनरेशन की रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो हमारे को एक फोकस जो देना है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर देना है। जो मीटरिंग के लिए आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत जो फंड्स अवेलेबल हैं उसका अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें और उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करें तो ये डेटा अवेलेबिलिटी हमारे पास में हो सकती है। और कई चैलेंजेस जो हमारे सामने आ रहे हैं वो इस डेटा से हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। अब यूटिलिटीज़ के साथ में एक समस्या ये है कि इस डेटा को हैंडल करने के लिए मैन पावर उनके पास में ट्रेंड मैन पावर नहीं है। अगर आरडीएसएस का ही हम देखें तो आरडीएसएस में जो एएमआईएसपीज़ हैं आपके, वो कई तरह के प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। इतनी बड़ी यूपी की जो संख्या है और जितना विस्तार है उसको लेकर के कई एएमआईएसपीज़ जो हैं उनको टेंडरिंग हुई है, उनको अवार्ड हुआ है। अब वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं।
तो जो हमारा ऑफिसर है, जो इंजीनियर है, वो अगर उस सारे प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग उसको देना, उसकी समझ उसको पैदा करना, उसको वो हैंडल कर सके, उसको यूज़ कर सके और प्रेडिक्शन कर सके, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हमारे को इन सबको हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक डेडिकेटेड काडर आईटी और डेटा मैनेजमेंट के लिए अपने बीच से छांट करके, अगर नए रिक्रूट नहीं करने तो उन्हीं में से हम कुछ छांट करके उन लोगों को एनलिस्ट कर सकें, उनको तैयार कर सकें, जिससे वो ये डेटा हैंडलिंग कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। बैंकिंग एक चैलेंज है आरई के लिए। आई नो कि यूटिलिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है। आई जस्ट फाइंड अप बैंकिंग एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं यूटिलिटीज़ के लिए, और उनके ग्रीवेंसेस भी रहते हैं रेगुलेटर्स के साथ में कि साहब ये बैंकिंग के चक्कर में हमें मत डालिए। ओपन एक्सेस इज अगेन एन इशू। अब वो हमें भी करना है एज रेगुलेटर पुश, वो वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट ओपन एक्सेस इज दी नीड ऑफ द डे नाउ, और आरई पावर को भी उससे प्रमोट करना है। तो ये सब भी आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। अपने एसेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आपके पास तमाम रिसोर्सेज है 5G टेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, अपनी मैन पावर को कैसे यूज़ करना है, ये सब चैलेंजेस आपके सामने हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मीट है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसमें निकल करके आएंगे, एंड we'll be able to also as regulators benefit from the recommendations which come forth. Thank you. Thank you so much, Arvind Kumar ji, for your address, and also, ensuring the right policies, tariff for in balancing affordability, reliability, and the consumer needs. So thank you so much, sir. And it is now my privilege and honor to hear from Shri A.K. Sharma ji, Honorable Minister for Energy, Government of Uttar Pradesh. Very warm welcome, sir, and over to you for your address. Thank you. भारत के कोने कोने से आए हुए पावर सेक्टर से संबंधित तमाम सज्जनों और सन्नारियों, मंच पर बैठे हुए भारत के एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी प्रशासक, और वर्तमान में हम सबका भारत में पावर सेक्टर में और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में नेतृत्व कर रहे हैं बहुत ही सम्माननीय, हमारे सब बहुत ही आदरणीय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे साथ यहाँ मंच पर उत्तर प्रदेश के रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन, और जैसा कि उन्होंने कहा स्वयं हमें मित्र अभी भी मानते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारा उनका थोड़ा रिश्ता जो है थोड़ा लेन देन वाला हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे डिस्कॉम की हेल्थ ठीक हो, उनका दृष्टिकोण थोड़ा स्वाभाविक है, रेगुलेटर है। हाँ, तो रेगुलेटर के रूप में उनका मैं व्यक्ति के रूप में, अपने बैचमेट के रूप में, हमारे साथी के रूप में भी सम्मान करता था, और आज भी मैं उनका मंच पे स्वागत और सम्मान करता हूँ। उन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ के माननीय रेगुलेटर जी और अन्य कई राज्यों के, हमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन के भी कई यहाँ महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं यूपी में स्वागत करता हूँ। हमारा एक दूसरा विभाग जो है अर्बन डेवलपमेंट, उसके माननीय राज्य मंत्री हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय गुरु जी उनको प्रेम से बोलते हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, नरेंद्र भूषण जी, आशीष गोयल जी, पंकज कुमार, रणवीर प्रसाद जी, और इस फोरम के चेयरमैन माननीय पिल्ले जी, आप सभी का उत्तर प्रदेश में मैं अपने टीम के सभी मेंबर्स ने जैसे स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। लखनऊ के बारे में कहा जाता है, आप सब बड़े गंभीर होकर के बैठे हैं, और कहा क्या जाता है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो इतना गंभीरता से इस विषय को लेने की आवश्यकता है, लेकिन गंभीर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी का एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना
आप सबकी तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि अयोध्या आप कुछ लोग जाने वाले हैं। आपको मैं दो बातें और बताऊँगा कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की तो है ही, लेकिन पूरे देश की शायद पहली सोलर सिटी बन करके तैयार है। और आप देखेंगे कि वहाँ सोलर एनर्जी, भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उसको सोलर सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग 10 से 11 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट लाइटें जो हैं वहाँ सोलर से संचालित हो रही हैं। लगभग सभी चौराहे वहाँ जो हैं वो सोलर लाइट से संचालित हो रहे हैं। वहाँ वाटर एटीएम सोलर लाइट से संचालित हो रहे हैं। वाटर बोट्स भी जो पानी में सरयू नदी में नावें चलती हैं वो भी सोलर से संचालित हो रही है। और उसके उपरांत, सब के उपरांत 40 मेगावाट, बहुत सारा रूफटॉप भी लग चुका है वहाँ। उस सब के उपरांत एनटीपीसी के कोलैबोरेशन से हमने 40 मेगावाट का सोलर प्लांट भी वहाँ कमीशन कर दिया है, उससे भी एनर्जी जनरेट होने लगी है। तो उसी दिशा में हम लोग अन्य नगरों को भी, अपने हमारे जो अन्य 16 नगर हैं उनको भी हम उसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इस बात को शायद मैं धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी एक मिनिस्टर के पास होने का कई फायदे हैं। एक तो फ़ायदा मैंने गिना दिया कि अपने सिटीज़ को हम लोग सोलराइज करने का, उनको हर दृष्टि से एफिशिएंट बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूपी के परिप्रेक्ष्य में हमारे अधिकारी इस बात के गवाह हैं कि हमने हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, हजारों करोड़ रुपए का बिजली का बिल जो है हमारे ऊपर लदा हुआ था। कोई पूछता ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं करता था। अब मेरे पास दोनों जब काम आया तो एक बार ये आके बोले, फिर दूसरे को डांटूं, दूसरा आके, ऐसे करके हमने काफ़ी कुछ इनका काम जो है हल्का किया है। इतना ही नहीं, हम लोग अब अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गांव जो है कस्बा बनना चाहता है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो कस्बे के आना है हम उसे परिभाषित भी करते रहते हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था जो है वो उसको कन्वर्ट होने में बहुत समय लग जाता है। ग्रामीण से ग्रामीण नेटवर्क या ग्रामीण ग्रिड से शहरी ग्रिड में आने में, क्वालिटी ऑफ सप्लाई अचीव करने में बड़ा समय लग जाता है। उसका बड़ा उपद्रव हो रहा था कि आपने 200 नगर पंचायतें तो नहीं बना दिया, लेकिन बिजली तो आपका वही है, बिजली मंत्री भी आप ही हैं। तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी हमने 1000 करोड़ रुपया नगर विकास विभाग के फंड से बिजली विभाग को दिया कि आप भैया नगरों की व्यवस्था तो कम से कम बेहतर कर दीजिए। लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस देश में बिजली को लेकर के आप सबको मालूम है, माननीय मंत्री जी ज़्यादा विस्तार से बता सकेंगे। वो मुख्यमंत्री हरियाणा के होने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक एनर्जी मिनिस्टर भी रहे हैं, तो हम सब से उनका अनुभव ज़्यादा है। लेकिन इस देश में बिजली, पानी, सड़क पे राजनीति आप जानते ही हैं, बहुत हुई है। क्राइसिस थी, कमी थी बिजली की, नेटवर्क हमारे पास नहीं थे, ग्रिड्स नहीं थी, हमारे पास ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें नहीं थी। तो स्वाभाविक बात है, हम आप जो बैठे हुए हैं वो सभी जो बड़े हुए हैं उस बिजली के उस संकट काल में ही अपनी पढ़ाई लिखाई, बहुत से लोग होंगे जो मैं गाँव में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम तो लालटेन और डिब्बी में पढ़ने वाले जनरेशन के लोग हैं। वहाँ से आज, जैसा आशीष बता रहे थे कि पहले बिजली आती थी, मेरा ही वाक्य मैं कई बार कहता हूँ कि पहले बिजली आती थी तब न्यूज़ बनती थी, अब बिजली चली जाती है तब न्यूज़ बनती है। और अब बिजली को लेकर के राजनीति अभी भी है। और वैसे लोग भी कि जिनके ज़माने में, हम तो यहाँ बिजली मंत्री बनने के बाद यही का रहने वाला हूँ, अनुभव था, लेकिन वो बात लिखत पढ़त में ध्यान में नहीं आती थी। फोटो देखे हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स देखने को मिलती हैं कि ऐसे ऐसे सीन दिखते हैं फोटो के और न्यूज़पेपर के, मीडिया के, कि बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते थे पिछली सरकारों में, हमारे पहले की सरकारों में, भाजपा की सरकार के पहले की सरकारों में। बच्चे जो है बिजली का तार पकड़ के झूला झूलते थे। ऐसे मतलब कि बिजली कभी कभार आती थी, किसी को वो सबको तसल्ली थी कि कोई जोखम नहीं है बिजली का तार पे झूला झूलने में। ऐसे लोग भी अगर 5 मिनट बिजली चली जाए तो ट्वीट तुरंत उनका जो है हो जाता है कि अरे बिजली मंत्री का ये, बिजली मंत्री का वो, बिजली विभाग का वो, सरकार की ऐसी तैसी। तो ये एक आवश्यकता बन गई है। जैसा मैं तो कहता हूँ अक्सर कि जैसा हवा और पानी
जितना आवश्यक हो गया है उतना ही आवश्यक जो है बिजली हो गई है, क्योंकि कई जगह तो पानी भी बिजली के वजह से आता है, पंपिंग नहीं हो पाती है। बिजली जब जाती है लोग ट्वीट वो करते हैं सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पानी पीने के भी नहीं के लाले पड़ गए हैं। मोबाइल चार्ज का लोग लिखते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली नहीं है। बीच में हमारे यहाँ एक हड़ताल पड़ गई थी तो 48 घंटे चली, उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अब तो मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते, अब इतनी बिजली नहीं। तो ये एक आवश्यकता बन गई है हमारी, आपकी, जनता की, और इसीलिए जनता का प्रेशर भी होता है, जनता का गुस्सा भी होता है हमारे ऊपर, और उस गुस्से को हमें समझना पड़ेगा, उस गुस्से को हमें झेलना पड़ेगा। मैं कई बार अपने साथियों से कहता हूं कि भाई आपको अपना धीरज, आपको अपना संयम जो है खोना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो यही मैं आप सभी से, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के लोगों से कहूँगा कि आप ऐसा एक काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की उम्मीदें बहुत है। अभी हमारे सिस्टम्स उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं कि हम लोगों को एकदम संतुष्ट कर सकें। 24/7 पावर का कॉन्सेप्ट जो है मैं पहली बार माननीय मोदी जी के मुंह से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मैंने सुना, और आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत, जहां बिजली कमी होती थी वहां हम आत्मनिर्भर भी बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इतनी बिजली आ गई है, हम पैदा करने लगे हैं कि पड़ोसी देशों को हम बिजली शायद सप्लाई या एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आ गए हैं। नेपाल है, हमारे पड़ोसी अन्य देश हैं, वहाँ हम बांग्लादेश है, वहाँ हम बिजली दे पा रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ बदलाव आ रही हैं। माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग 3 दिन, ये तीसरा दिन है कि हम लोग लगातार संपर्क में हैं। परसों हमारी दिल्ली में मीटिंग थी माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में सभी पावर मिनिस्टर्स की, फिर कल भी हमने पावर सेक्टर पे यहाँ उनके मार्गदर्शन में हमने चर्चाएं की, और आज फिर से तो लगातार माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण और उनका मार्गदर्शन भी देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो समय अब दूर नहीं है कि जब बिजली जो है एक संकट होने के बजाय हमारी स्ट्रेंथ बन करके शायद हमारे इस देश में, और आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की टेक्निकल कॉम्पिटेंस के भरोसे, आप लोगों की जो समझदारी है, एक्सपर्टीज़ है, उसके भरोसे माननीय मंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि सभी राज्यों में आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हम हमेशा के लिए इस संकट से बाहर भी निकलेंगे, और शायद हम आने वाले दिनों में इसको एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में हम बिजली का आ जाएंगे। ऐसा मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो फिर से मैं माननीय मंत्री जी की परमिशन लेते हुए, धृष्टता करते हुए उनकी उपस्थिति में कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो एक संकट काल था उसमें से अब हम धीरे धीरे बिजली के क्षेत्र में बाहर आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में परसों जो सभी राज्यों का, भारत सरकार के यहाँ अधिकारी भी बैठे हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, पावर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए, उनकी सभी के और माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में भारत सरकार ने जो प्रेजेंटेशंस किए उसके 2-3 उदाहरण में, कैसे यूपी बदल रहा है, पावर सेक्टर यहाँ का बदल रहा है, उसका उदाहरण ये, एक तो ये कि हमने इस साल की गर्मी में पूरे देश में अभी तक, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ बैठे हुए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन की भावना अच्छी होती है, तो अभी तक महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पीक डिमांड मीट करने वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से हमने महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है, और इस बार एक 30,618 मेगावाट की पीक डिमांड के साथ हम लोगों ने इस गर्मी में, बहुत ज़्यादा गैप पहले और दूसरे नंबर के राज्यों में था। तो एक तो ये बात निकल करके आई थी। दूसरी बात जो निकल करके आई थी कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है उसमें बेहतरी हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के रूप में RDSS के जो काम है उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन करके उभर करके आया भारत सरकार के ही प्रेजेंटेशंस में। और तो ये सब जो हमारी कमियां थी, जो हमारी कमजोरियां थी, इतना ही नहीं, इवन PM सूर्य घर योजना में भी अभी मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूँ कि हम तीसरे नंबर पे नहीं होने चाहिए, लेकिन तीसरे नंबर पे हैं।
उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य पहले नंबर पे हम ले जाने के कोशिश में हैं, लेकिन हम उस दिशा में भी अच्छा कर रहे हैं। सीबीजी के प्रोडक्शन में हम 250 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। तो ये सारे काम मैं यूँ कहूँगा कि हम अभी मंजिल नहीं पाए हैं, लेकिन गाड़ी जो है सही पटरी पे चल पड़ी है। और जब पटरी सही होती है, दिशा सही होती है, ट्रैक सही होता है, तो स्वाभाविक बात है कि हम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। हमारी मंजिल ये है कि 24/7 पावर की सप्लाई हम लोगों को करें। और मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना जब भी चर्चाएं हों तो उसको यूपी जैसे राज्य को केंद्र में रख करके, क्योंकि बाकी कई राज्य तो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, गुजरात है, अन्य कई राज्य हैं जो उनके सिस्टम्स काफ़ी दशकों से माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से शुरू करके आज उनकी काफ़ी बेहतरी हो चुकी है। लेकिन यूपी है, नॉर्थ के और भी कई स्टेट्स हैं, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में आप अगर कल भी माननीय मंत्री जी हमारी मीटिंग में बोल रहे थे कि भाई अगर यूपी ठीक हो गया पावर सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में, तो समझो कि देश जो है वो कई पैराडाइम शिफ्ट जो है देश की डेवलपमेंट में हो जाएगा। तो यूपी जैसे राज्य को विशेष रूप से आप केंद्र में रख करके आप चर्चाएं करेंगे, क्या करें कि यहाँ हमारी बिलिंग इफिशियंसी बढ़े, क्या करें कि यहाँ हमारी जो है कलेक्शन इफिशियंसी बढ़े। जैसे मैंने कहा ना कि हवा और पानी जैसा ये आवश्यक एक कमोडिटी हो गई है बिजली, उसी तरह से हवा पानी की तरह लोग ये मानते हैं कि ये तो मुफ्त की चीज़ है। मुफ्त की चीज़ नहीं, मैं बिजली मंत्री होने के बावजूद ये बात कहने की वो कर रहा हूँ कि लोग यही मानते हैं कि बिजली का पैसा कहाँ देना, जैसे हवा का नहीं देना है, पानी का नहीं देना, वैसे बिजली का नहीं देना। तो ये एक बना हुआ है। हम भी गांव के रहने वाले हैं, हमने देखा है कि कोई मीटर लगाना, बिजली का बिल आना, बिजली का बिल पे करना कभी विचार में ही नहीं आता। तो अब हमें ये चैलेंजेज आ रहे हैं कि भाई अगर बिजली 24 घंटे देनी है। मैं तो इन लोगों से कितनी पहली हमारी मीटिंग जो हुई थी उस समय ये चेयरमैन नहीं थे माननीय मंत्री जी, तो मैंने चेयरमैन को पूछा कि भैया ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, हम तो गुजरात से आए हैं, गुजरात में नौकरी किया, माननीय मोदी जी ने हमारे देखते देखते 24/7 पावर वहाँ कर दिया। तो आप ये बताओ कि आप और हम मिलकर के यूपी में कब 24/7 पावर हम कर पाएंगे। तो लगे हमारा मुंह देखने, पूरा 3 मिनट तक उन्होंने हमारा मुंह देखा। तो हम कहे क्या बहुत बड़ा हमने कोई आपको कोर्स के बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया क्या? तो बोले नहीं साहब, इसका तो अभी हमने यूपी में सोचा ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने एक बात बड़ी बताई जो हमारे दिमाग में एकदम घुसी हुई तभी से। उन्होंने ये कहा, और आज भी ये अधिकारी कहते हैं, हम कहे यार बिजली हम ले आ देंगे, गुजरात वालों से भीख मांग लेंगे, थोड़ा बिजली मिल जाएगी, यहाँ से ले लेंगे, कहीं छत्तीसगढ़ वाले ज़्यादा पैदा करते हैं उनसे ले लेंगे, बिजली की व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम क्यों नहीं 24 घंटा करते हो? तो इन्होंने कहा, और ये बात सही है, समस्या थ्रू रेट की आती है कि साहब हम जितना यूनिट बिजली सप्लाई करते हैं वो हर यूनिट पे हमें कुछ न कुछ रुपए का घाटा होता है। तो कहाँ से हम दें? हम कोई मोटिवेशन ही नहीं है यहाँ इन लोग ये बैठे हुए लोगों को 24 घंटा बिजली देने का, इसलिए कि हर यूनिट पे इनका घाटा हो रहा है। घाटा होता है तो इनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों घाटा होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, सभी लोगों का सवाल ये होता है घाटा तुम कब पूरा करोगे, कब तुम्हारी कलेक्शन इफिशियंसी बढ़ाओगे। अब ये एक हार्ड रियलिटी है जिसमें से हमें रास्ता निकालना है। आप सबका इस दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे जैसे राज्यों को बहुत फ़ायदा होगा। और भी जो हमारे रेगुलेटर साहब ने उस तरफ इशारा किया, लेकिन मैं थोड़ा उसको कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जो है मैंने स्वयं अपने जीवन में उसको उतार करके देखा है और उसके फ़ायदे हमने देखे हैं। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन इस क्षेत्र में होना बाकी है। अभी बहुत जो हो रहा है बड़ा रूडिमेंट्री, मैं तो कहूँगा मिनिमल हो रहा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं कई बार इन लोगों को कह चुका हूँ कि एक चीज़ जो हमें जो सबसे पीड़ा देती है कि खंबे पे चढ़ करके हमारा लाइनमैन जो है लाइन बना रहा है और पीछे से सब स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई, या आपने ऑफ तो किया है, शट डाउन किया है, लेकिन बिजली का करंट उसमें अभी भी कुछ घंटे कुछ समय का कुछ होता है, या एक को ऑफ किया दूसरा कहीं से ऑन रह गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं जब से बिजली मंत्री बना हूँ तब से अपने मित्रों को कहता हूँ यार इसका कुछ तो टेक्निकल सलूशन निकालो। मुझे IIT कानपुर के लोग मिले, मैंने उनको कहा, कुछ काम से आए थे, मैंने कहा भैया इसका कुछ उपाय निकालो।
आजकल OTP का, इसका उसका, गाड़ी में ट्रेनें जब चलती थी, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं थे, तब भी ये स्टेशन मास्टर जो है कुछ तो व्यवस्था करता था कि गाड़ियां लड़े नहीं स्टेशन पे। हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ जा कर के उपाय हम लोगों ने निकाला है, हमारे कानपुर के MD ने और कानपुर IIT ने मिलकर के एक सिस्टम बनाए हैं, जिसको हम लोग अब इस समय एग्जामिन कर रहे हैं। और जल्दी कि ऐसा कुछ करो कि लाइन चालू ही ना हो, कुछ भी कर ले, और जब तक आदमी उतर करके खंभे से आपको ग्रीन सिग्नल ना दे, लाइन चालू ना हो। आदमी मर रहे हैं हर हफ्ते, हमको इस तरह की बातें आती हैं। ये सब चीज़ें, और समय के साथ जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके लिए पब्लिक ओपिनियन कैसे बने। जैसे स्मार्ट मीटर, कल परसों माननीय मंत्री जी कई बार ये कहे कि भाई क्या इसकी शुरुआत हम गवर्नमेंट बिल्डिंग से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कर सकते हैं क्या? करना चाहिए, हम लोग करेंगे भी, लेकिन इसके बारे में हम एक ब्रॉड पब्लिक ओपिनियन कैसे बनावें। लोगों के मन में अभी भी शंकाएं, कुशंकाएं हैं कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा, प्रीपेड मीटर लग जाएगा, तो जब चाहेंगे काट देंगे, जब चाहेंगे हमारी बिजली गुल कर देंगे। वो सब बातें हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। जो आप शिकायतें आती हैं कि हमारी बिल में लाइनमैन ने, फलाना ने, मीटर रीडर ने ये गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया, वो सबसे निजात भी मिली। तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट करने की इस सेक्टर में आवश्यकता है कि लोगों को ये एक यूटिलिटी है, अगर उसको सस्टेनेबल, जो इस आज का थीम है, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को सस्टेनेबल रखना है, तो जनता को और सरकार को, सरकारी जो उपक्रम है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के, कई यहाँ प्रबंध निदेशक, MDs, चेयरमैन भी आए हुए हैं, कई राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ACSs भी आए हुए हैं। सभी को ये चैलेंज जो फील हो रहा है, उससे हम कैसे निकल करके आगे बढ़ें। और टेक्नोलॉजी से एक काम और जो आए दिन हमें शिकायतें मिलती हैं कि बिल में ये लिख दिया, बिल इतना ऊंचा हो गया, बिल को फिर ठीक कराना होता है, बहुत सारी झंझटें होती हैं। उसका भी सलूशन यही है कि हम टेक्नोलॉजी आधारित बिलिंग का सिस्टम हम बनावें। माननीय मंत्री जी और आप सबको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि हम, जैसा मैंने कहा कि हम सही दिशा में चल पड़े हैं। अभी पिल्लई जी हमको बता रहे थे थोड़ी देर पहले, जब हम लोग बाहर खड़े थे, कि यूपी जो है, माननीय मंत्री जी, यूपी के डिस्काम्स, मतलब हम एकमात्र स्टेट हैं कि जहां यूपी में डिस्काम्स की बैलेंस शीट बनना जो है शुरू हो गई है, और इसी साल से शुरू हुई है। और हमारे चेयरमैन ने ये भी बताया कि उसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है कि हम जितना फ़ायदा नुकसान लिखना चाहें लिख दें, मुनीम वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ERP बेस्ड जो है हमारी बैलेंस शीट्स बन रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी दिशा में हम चल पड़े हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं। आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं, जरूर जाइए, लेकिन मैं जिसको समय है उसको ये भी प्रेरित करूंगा कि आप काशी भी जाइए। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनका संसदीय क्षेत्र होने के नाते, और कल संयोग से कल देव दिवाली भी है, तो काशी बिल्कुल सजी हुई आपको मिलेगी अयोध्या के साथ, जिसका अगर सुविधा करने की आवश्यकता हो तो आप व्यवस्था काशी जाने वालों की भी अवश्य किया जाए। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और मैं आशा रखता हूं कि हमारे जैसे राज्य को, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, और जहां बिजली के क्षेत्र की चुनौतियां भी बड़ी हैं, ऐसे राज्य को आपके इस चर्चा विचार से, विमर्श से बहुत फ़ायदा होगा। वंस अगेन I welcome you all and thank you all for participating in this important conference. Thank you. Thank you so much, Honorable Minister Sir, for your inspiring words and inspiring address, and for your vision and commitment in advancing Uttar Pradesh energy sector are truly commendable, sir. So thank you, and before we invite our Honorable Chief Guest for his inaugural address, we will like to request, sir, and the dignitaries on the dais to please launch two of the initiatives on the special occasion of Distribution Utility Meet. All India Discoms Association, as Dr. Goel has already mentioned. May I request my colleague to please? So, Honorable Minister Sir, Manohar Lal ji, please
do the honor, sir. Honorable Minister Sharma ji, please join us, and Honorable Minister Shri Guru. Ladies and gentlemen, the All India Discoms Association, AIDA, a new association of distribution utilities in India, aimed at collaborating and strengthening the capabilities of distribution sector. And the second initiative we will request, sir, to launch is the National Solar Registry, Rooftop Registry, a pioneering initiative by ISGF for efficient management of rooftop solar PV systems and other distribution energy resources in the country. Thank you so much, sir, for helping us launch the two key initiatives. Now I have the pleasure of... Now we are moving to the highlight of today's function, the moment we have been eagerly waiting, the speech by our chief guest, Honorable Minister Shri Manohar Lal ji. Request, sir, for your inaugural speech, sir. Over to you, sir. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, MOS शहरी विकास मंत्रालय श्री राकेश राठौर जी, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन श्री अरविंद कुमार जी, ऊर्जा विभाग के ACS श्री नरेंद्र कुमार कौशल जी, चेयरमैन यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डॉक्टर आशीष गोयल जी, MD पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड श्री रणवीर प्रसाद जी, MD पावर कॉरपोरेशन श्री पंकज कुमार जी, श्री रेजी पिल्लई जी, ICGF जो इस कन्वेंशन के पूरे के आयोजक हैं, उपस्थित सभी ऊर्जा परिवार के सभी साथियों, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर मैं समझता हूँ कि ऊर्जा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अवसर, और मुझे जानकारी ये मिली है कि हर वर्ष इस प्रकार की एक मीट ये हमारी होती है। बहुत से विचार यहाँ आए हैं, आपने सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था बैठे बैठे कि अगर कुछ लोगों को इकट्ठे बैठा करके पूछा जाए कि सरकार में बहुत से विभाग हैं, वित्त विभाग है, कहीं ऊर्जा विभाग है, इरिगेशन है, या अन्य बहुत से विभाग, सबको पूछा जाए बताइए कौन सा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है सरकार के काम के लिए। अब पूछेंगे तो स्वाभाविक है कोई एक उत्तर नहीं मिलेगा, हर कोई कहेगा अपने अपने आप से हिसाब से कहेगा। कोई कहेगा कि वित्त मंत्रालय अच्छा है, कोई कहेगा कि शहरी विकास अच्छा है, कोई कहेगा ऊर्जा विकास अच्छा है, किसी को इरिगेशन अच्छा लगता है, किसी को माइनिंग अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। और मेरे जैसे पूछेंगे अब निर्णय नहीं हुआ, आप बताओ कौन सा विभाग अच्छा है, तो मेरा उत्तर बड़ा स्वाभाविक रहेगा। मैं ये कहूँगा कि सब विभागों में सबसे अच्छा ऊर्जा विभाग है। अब प्रश्न आएगा क्यों है ऊर्जा विभाग अच्छा। इसको भी दो प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। एक व्याख्या हमारे अरविंद कुमार जी मंत्री जी ने कहा है कि ऊर्जा विभाग भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न आएगा कि बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सभी महत्वपूर्ण है। तो फिर क्यों है महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण विभाग ऊर्जा विभाग क्यों है? तो मेरा उत्तर क्या होगा? मैं कहूँगा चूंकि मैं देश का ऊर्जा मंत्री हूं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स बैठे हैं सबको
अपने आप को इस विभाग के साथ जोड़ना है, इसकी ओनरशिप महसूस करनी है कि मेरा विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, मेरा काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। बचपन में हमने एक छोटी कहानी सुनी थी कि कुछ विद्यार्थियों को, जो शोध के विद्यार्थी थे, उन्होंने कोई एक सर्वे करने के बाद छोटा सा एक विषय उनके जिम्मे लगाया, जाओ देखो इस गांव के अंदर घूम के आओ, देखो सबसे बढ़िया गली कौन सी है, और फिर देखो गांव में सबसे बढ़िया मकान कौन सा है। तो उसी पुरानी बात को अपनी को थोड़ा स्ट्रेस करने के लिए कहानी सुना रहा हूँ जो बचपन में सुनी थी। घूम घाम करके आए, इकट्ठे हुए तो सबका उत्तर अलग अलग, किसी ने इस गली को अच्छा बताया, किसी ने उस गली को अच्छा बताया, निर्णय हुआ नहीं। तो एक बुजुर्ग आदमी, बहुत गरीब सा बेचारा, सामान्य कपड़ों में खड़ा, बुलाया उनको कि बाबा आप तो वर्षों से गांव में रहते हो, बताओ सबसे बढ़िया गली कौन सी है इसमें गांव में, हम उसी को मान लेंगे बढ़िया है, और बताओ सबसे बढ़िया घर कौन सा है, हम उसी को बढ़िया मान लेंगे। कि आपको पता नहीं लगा कौन सा बढ़िया, कौन सी गली बढ़िया है? कि नहीं पता लगा, आओ मेरे साथ। ले गया एक ऐसी टूटी फूटी गली, ईंटें उखड़ी हुई थी, पानी बह रहा था। कहने लगे ये सबसे बढ़िया गली है इस गांव की। कहने लगे ऐसे कैसे बढ़िया, इससे बढ़िया तो और बहुत है। और वो कोने वाला जो घर देख रहे हो ना, वो सबसे बढ़िया घर है इस गांव का, कि वो घर भी बड़ा, दरवाजा टूटा फूटा है, वो बढ़िया कैसे है? कहने लगे देखिए वो घर मेरा घर है, ये गली मेरी गली है, इसलिए सबसे बढ़िया है। न्यूनता भी है तो स्वयं की भावना ये जागृत होनी चाहिए। ये अलग बात है उस न्यूनता को कैसे ठीक करना है, इसकी ओर हम विचार सब करेंगे। देश और दुनिया में ऊर्जा के बारे में बहुत से व्याख्यान हो रहे हैं, बहुत से चिंतन हो रहे हैं, बहुत सी रिसर्च हो रही है। हमें उसकी ओर बढ़ना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है। कोई भी अच्छी बात कहीं से भी हमको मिले, वो हमको प्राप्त करनी है, सीखनी है, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी है जहां आज हम हैं, उससे आगे कैसे बढ़ना है। बहुत किसी प्रकार की ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए कि भी हम तो बहुत खराब हैं। जो है वो है, हमको ठीक कैसे करना है, आगे बढ़ना है। आज बहुत कठिनाइयां हमारे सामने हैं। देश को विकसित भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है 2047 तक। दुनिया में पहले से विकसित देश कई हैं, कंपीट करना है, 100 साल देश की आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन विकसित भारत को बनाने के लिए हमारे देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था ये सबसे मजबूत कैसे बनेगी, वो बनाने के लिए भी बहुत से उसके विषय हैं, बहुत से उसके सेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। ऊर्जा हमारे जीवन का ईज ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। ऊर्जा हमारे उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। उत्पादन होगा, हमारी कंज्यूमरिज्म हमारा जो है उसमें हमारा उत्पादन हमारे काम आएगा, और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। और अब तो एक्सपोर्ट में भी दुनिया में कुछ कंडीशंस लगने लग गई हैं कि आप ग्रीन कॉरिडोर से, ग्रीन एनर्जी से अगर कुछ बनाओगे तो उसको इंपोर्ट हम करेंगे। अगर आपने फॉसिल जो हमारा ईंधन है, फ्यूल है, इससे चीज़ बनाओगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा एक समय भी आने वाला है। बड़ा चैलेंज है ये। तो इस चैलेंज को स्वीकार करके हमको देश भर में सब एजेंसीज को इन चीज़ों के लिए तैयार करना पड़ेगा। पावर यानी ऊर्जा, बहुत सी एजेंसीज हैं। हमारा जनरेशन का सिस्टम है, ट्रांसमिशन का सिस्टम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। मुख्य रूप से आज हम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं, लेकिन संबंधित लोग जो बैठे हैं जिनके जिम्मे बाकी काम भी, वो भी उनको विचार करना पड़ेगा। कोई अगर हम प्रिमिटिव एज में जाएं तो पुराने समय में शरीर की यानी आवश्यकता जैसे बाकी चीज़ों की ऊर्जा की पहले दिन से है। उस समय हम ऊर्जा अग्नि से लेते थे, आग से लेते थे। खाना पकाना आग से पकाना, लकड़ी से आग जलाओ, कोयले से आग जलाओ, बाद में मिट्टी के तेल से आग जलाओ, ये चीज़ें आई। लेकिन आखिर शक्ति तो, ऊर्जा तो हमें इस अग्नि से ही मिलती थी। बाद में इसके स्वरूप बदले कि इस अग्नि के साथ फिर ये पावर का सिस्टम बन गया। संयोग से ये जो एनर्जी और पावर, ये भी उसी अग्नि में से निकलती थी। कोयले से बनाओ या तेल से बनाओ, ईंधन से बनाओ,
तेल का ईंधन वो भी अग्नि प्राप्त करता था, उसमें भाप बनती थी, फिर उसके बाद हमारे सिस्टम बनते थे तब ऊर्जा पैदा होती थी। एक कन्वर्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही तो था। सुविधा होने लग गई, बिजली ले आओ। जैसा शर्मा जी ने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ता था, 1967 की बात है, हमारे गांव में सबसे पहले बिजली उस समय आई थी। उससे पहले टेबल लैंप एक होता था ऊंचा सा चिमनी वाला, उसके साथ पढ़ते थे। तो ये धीरे धीरे विकास इसका होता चला गया और फॉर्म बदलते चले गए। उस फॉर्म बदलने में और जब विकास हुआ तो इसके रिफॉर्म्स भी होने लगे कि बिजली हमारी कोयले से बनती है तो अन्य प्रकार, पानी से बिजली आ गई, वायु से बिजली आ गई, फिर सोलर बिजली आ गई और अब न्यूक्लियर बिजली इसकी ओर आगे बढ़ गए। आवश्यकता पूर्ति सब चीज़ों से हमको करनी पड़ेगी, जो साधन जहाँ उपलब्ध उसको करेंगे। और मैं तो कई बार कहता हूँ ये बिजली का जो क्षेत्र है इतना व्यापक है कि जब सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, इसमें प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग है, तो प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है, मैं कई बार कहा करता हूँ ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों को देखा जाए तो ये भगवान के दूत हैं, भगवान के दूत हैं। 5 तत्व हैं जिसका मनुष्य उपयोग करता है, उन 5 तत्वों का उपयोग हम भी करते हैं। और 5वां तत्व भगवान के तत्व कैसे हैं? भ, इट स्टैंड्स फॉर भूमि। ग, इट स्टैंड्स फॉर गगन। व, इट स्टैंड फॉर वायु। अ, इट स्टैंड फॉर अग्नि। और न, इट स्टैंड फॉर नीर। ये बनता भगवान। हम सब चीजों का उपयोग करते हैं। भूमि यानी कोयले का उपयोग करते हैं, गगन, आकाश में भी सारी चीजें आकाश के माध्यम से सब हमको प्राप्त होती हैं, वायु से प्राप्त होती है, अग्नि से प्राप्त होती है, पानी से प्राप्त होती है, तो सारी बिजली उसमें से बनती है। हम उसके नाते से उसका एक सिस्टमेटिक दोहन करते हैं और दोहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चैलेंजेस भी आ गए इसमें। चैलेंज क्या है? बिजली का उपयोग हम अपने मानवता के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये आ गया कि हमारे बिजली के कारण से कुछ चीजें ऐसी होगी कि मानवता पर खतरा भी हो गया शुरू। खतरा क्या हुआ? हुआ प्रदूषण। अब कोयले की बिजली बनाएंगे, प्रदूषण होगा। अब कोयले की बिजली बनाने से प्रदूषण तो कोयले से हटा जाए तो फिर इसमें से आगे बढ़ा जाए किधर? हाइड्रो से बढ़ो, ग्रीन, सोलर, सब आगे। और जब वो हो गया, बिजली चाहिए 24 घंटे, कब किसको जरूरत है मालूम नहीं। पीक आवर्स में ज़्यादा चाहिए, ऑफ पीक में कम चाहिए। लेकिन जिस समय हमको चाहिए, कुछ बिजली तो 24 घंटे मिलेगी, सोलर मिलेगी, सोलर नहीं मिलेगी, हमको हाइड्रो मिलेगी, हमको कोयले की मिलेगी। लेकिन वायु की कम मिले, जब वायु चलेगी तब मिलेगी। हमको सोलर कब मिले? जब धूप आएगी तब मिलेगी। अब जरूरी थोड़ी कि उसी समय हो, जरूरत का आवाज अलग है। इसमें से नया सिस्टम आया कि चलो भाई इस बिजली को स्टोर करो, स्टोरेज के माध्यम से इस साइकिल को ठीक करो। इस साइकिल को ठीक करना है तो फिर पंप स्टोरेज है, फिर आपके बैटरी स्टोरेज है। एक नए कंसेप्ट शुरू हो गए। अब ये लगातार चीज, इनोवेशन ये लगातार हो रही है। आवश्यकताएं बदल रही हैं, जनरेशन के प्रकार बदल रहे हैं, डिस्कॉम्स की समस्याएं अपनी आ रही हैं। डिस्कॉम्स की समस्याएं यानी डिस्ट्रीब्यूशन की। एक होती है सर्विसेज। सर्विसेज देना सरकार का काम होता है कि पैसा खर्च करो, सर्विस दो। कुछ लोग बिजली को भी कुछ समय तक सर्विस मानते रहे, लेकिन बिजली ये सर्विस नहीं है। इट्स अ कमोडिटी। एक उत्पाद है जिसका उत्पादन होता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो ये सर्विस नहीं है। और जब ये उत्पाद है तो ये एक व्यापार है। व्यापार है, इसके लिए सरकार ने कहा कि भाई अब सरकार व्यापार नहीं करेगी, कंपनियां बना के उसमें करेंगे। फिर सबकी कंपनियां बन गई। जनरेशन की कंपनी अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के अलग, यूटिलिटीज ये हमारे डिस्कॉम्स की अलग। और साथ में कहा कि जितना बेचो उतना पैसा पाओ, उतना खर्च करो।
समस्या ये है कि समाज के अलग अलग लेवल हैं, हर किसी से जो हमारा जनरेशन का खर्च है वो एक साथ ले नहीं सकते। जब एक जैसा नहीं ले सकते, गरीब से थोड़ा कम ले। अब आजकल तो फ्री बीज की समस्याएं आ गई हैं, मैं इसको समस्या कहता हूँ। फ्री बीज लोगों के हित में, शायद डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इसको एक हथियार बना लिया गया, लेकिन इसकी समस्या कहाँ आएगी? सरकारों से ये पैसा जाएगा, सब्सिडी जाएगी, सरकार का बजट यहाँ खर्च कर लो या वहाँ खर्च कर लो, होगा तो एक ही जगह। आज योगी जी कह रहे थे कि कितना आप घाटा कराओगे यूपी में, अभी शायद 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर घाटा हो गया उत्तर प्रदेश का अकेले का, सारे देश भर का 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। उदय स्कीम को अवेल करने के बाद हो गया। उदय हमने कब चलाया था? 2017 में। एक बार तो थोड़ा बोरोइंग्स, लॉसेस ये कम हो गए थे, लेकिन फिर बढ़ गए। अब बढ़ गए तो काम तो चलाना है, बिजली रोकी नहीं जा सकती, उत्पादन भी है, कंपनियां भी लगी हैं, किसी चीज को रोक नहीं सकते, तो मजबूरी में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गई कि अगर आपने घाटा खाया, आपने बोरिंग ज्यादा की, तो आपके ऊपर ये लगा दिए जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस। कुछ हमारे रेगुलेटरी कमीशंस के साहब बैठे हैं, अरविंद कुमार जी, इन्होंने नए नए नियम बना दिए, ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे। मल्टीपल एजेंसीज हमारी हैं, उन मल्टीपल एजेंसीज का उद्देश्य एक ही चाहिए, क्या? सिस्टम ठीक चले, हमारी जो आपूर्ति है, मांग के हिसाब से आपूर्ति पूरी हो, जनरेशन भी हो, कोई कंपनी घाटे में भी ना जाए। तो इसके काम के लिए रेगुलेटर्स को भी इसलिए तय किया गया कि रेगुलेटर्स, हमारे मंत्री जी को, अरविंद जी को थोड़ा शिकायत थी कि ये हमारे खिलाफ कई बार निर्णय करते हैं, सही सुनते नहीं है। देखिए, रेगुलेटर्स का अपना काम है, वो सही क्या है क्या नहीं है उनको दोनों तरफ देखना है। कभी कभी रेगुलेटर्स भी करते हैं। मैं पीछे एफ आर में गया था, वहाँ थे, तो वहाँ ये चर्चा चली कि किसका ध्यान रखना है, कंपनीज का ध्यान रखना है कि कंज्यूमर का ध्यान रखना है? तो दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। कंज्यूमर पर भी एक्स्ट्रा वजन ना पड़े, लेकिन कंपनियों को भी घाटा ना हो। कंपनी के बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो शायद डिसअलाउ कर दिए जाते हैं, और डिसअलाउ करने में अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कहेंगे ठीक है जी, घाटा है, सरकार सब्सिडी दे, और नहीं तो कल को ये बढ़ता रहेगा, हम बोरोइंग करते रहेंगे। और बोरोइंग में भी सरकार बोरो करके देती नहीं है, उनके अपने फाइनेंशियल्स गड़बड़ होते हैं, फिर रास्ता और ढूंढ लिया कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कभी पीएफसी से ले आओ, कभी आरईसी से ले आओ। क्यों? महंगा इसीलिए है कि वो उनकी मोनोपोली है कि और तो आपको देता नहीं है, आप घूम घाम के हमारे पास आओगे, हम आपको बाजार से 2% महंगा देंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कल को पीएफसीज और आरईसीज को भी रोक दिया कि आपने ऐसी घाटे वाली कंपनियों को फाइनेंस नहीं करना है, सहायता नहीं करनी है, फिर क्या करेंगे? घाटे की दुकान कब तक चलेगी? वो एक मुहावरा है को, यावत जीवेत सुखम जीवेत, क्या? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखी जीवेत। वो फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि ऋण लेकर के साख तो खत्म हो ही जाती है। ऋण उसी को मिलता है जिसका साख ठीक हो। और एक बार आपने लेना शुरू कर दिया और देना भूल गए या देने में डिफॉल्ट हो गए, तो फिर साख कम होगी। साख कम होगी तो वही आपको ऋण देने वाला कहेगा देखो बाजार में तो मैं 7 रुपये 8% में आपको दे दूंगा लोन, लेकिन आपको 10% लूंगा क्योंकि आपके यहाँ रिस्क ज़्यादा है। और ये हम स्टेट्स का देखते हैं। एफआरबीएम में जिसके पैरामीटर्स ठीक हैं फाइनेंस के, उसको सस्ते में लोन मिलता है। जिसके एफआरबीएम में पैरामीटर्स गलत हो गए या एक सीमा को क्रॉस कर गए, उसको 1% 2% ब्याज महंगा मिलता है। वो घाटे में और घाटा होता चला जाता है उसको। घाटा विशेष सर्कल है, तो इस विशेष सर्कल को अगर रोकना है तो हम सबको विचार करना पड़ेगा।
सब मिलकर के विचार करें कि इन समस्याओं का हल कैसे निकले। इसके लिए मेरा तो सुझाव ये भी था, अभी 2 दिन पहले जब एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें कहा हमने क्योंकि एक थिंक टैंक बनाओ अपने यहाँ, कोई एक रिसर्च सेंटर को अपने यहाँ खड़ा करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर से कुछ ना कुछ उसके लिए अलग से ग्रांट भी दे देंगे, बहुत स्कीमें हैं, RDS है, ये वो कई स्कीमें, इस नाम से भी, रिसर्च के नाम से भी, लेकिन कुछ करें तो सही। कोई भी अच्छा विचार, इनोवेटिव आइडिया, इट कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जरूरी नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग सब ठीक सोचते हैं, छोटे से हिस्से से भी अच्छा विचार आ सकता है। और जो अच्छा विचार आए, बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड बाय अदर्स आल्सो। 2 दिन पहले बहुत से अच्छे विचार वहां पर आए। किसी ने स्मार्ट मीटरिंग पर अच्छा विचार दिया, किसी ने लॉसेस कैसे कम करने हैं, नए नए तरीके और ढूंढे, बिजली की सप्लाई 24 घंटे कैसे जाए, इसके प्रयोग किए। हरियाणा में हमने एक प्रयोग किया था, मारा गांव जगमग गांव, ऐसी एक स्कीम चलाई थी। गांव के लोगों को उस समय 10-11 घंटे, घोषित 11 घंटे थे, मिलते भी नहीं थे 11 घंटे। हमने कहा इसको ठीक करना तो कैसे करें, एकदम 24 घंटे करेंगे तो वही वाली बात है कि कहेंगे घाटा इतना हो गया, कहाँ से नहीं देंगे। घाटा धीरे धीरे कंट्रोल में रखना, बिजली धीरे धीरे बढ़ाना, फेजेस बनाए 5-6, हर फेज को पूरा करते ही गांव एक यूनिट मान करके, बल्कि फीडर एक यूनिट मान करके, उस फीडर में अगर ये काम करोगे तो 2 घंटे बढ़ा देंगे, 12 से 14 कर देंगे। ये और काम कर लेंगे फीडर के सब लोग तो 14 से 16 कर देंगे, 16 से 18 कर देंगे। धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ती चली गई और आज हरियाणा के 6400 में से 5900 गांव में 24 आवर्स लाइट मिलती है, 24 आवर्स। और बिजली की कंपनियां सारी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी A1 ग्रेड में, A+ ग्रेड में आ गई, जहां तक मुझे ध्यान है हरियाणा की, या तो गुजरात की है प्लस की, या फिर हरियाणा की। अच्छी कंपनीज को आगे बढ़ने में अवसर बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी विचार आया कि जो अच्छी कंपनीज है उनकी लिस्टिंग करा दो, तैयार हो गई है लिस्टिंग करने के लिए कंपनियां। लिस्टिंग कराओगे तो सरकार से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो पब्लिक ही आपके कंट्रीब्यूट करेगी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको प्रॉफिट कमाओ, दो उनको, बजाय बैंक को ब्याज देने के। जो आपका डिविडेंड है पब्लिक को दोगे तो पब्लिक आएगी आगे। तुम्हारी कंपनीज को एक रैंकिंग अच्छी करके और उधर बढ़ने की भी आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा विषय इसलिए अलग हट करके कुछ इसलिए बोला मैंने कि सारी बातें तो टेक्निकल चीज़ें हमारे सब अधिकारियों ने बोल दी और आपने 2 दिन लगातार उसी पर चर्चा करनी है। आंकड़ों से सब आप एक्सरसाइज करोगे, उन आंकड़ों को कैसे सुधारना है, लेकिन मानस कैसा चाहिए? मानस ऐसा चाहिए कि ये हमारा विभाग है, मेरा विभाग है, इसको मुझे ठीक करना है। मेरे पास चाहे एक स्टेट का काम है, चाहे किसी छोटी जगह काम है, कंपनी का काम है, मुझे जनता को तकलीफ न पहुंचाते हुए, ईज ऑफ लिविंग का सिस्टम ध्यान रखते हुए, डिलीवरी ठीक करते हुए, घाटा कम करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना है। उसमें कोई भी सिस्टम, डिजिटलाइज की बात आई, उसके सिस्टम आप अपनाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़िया हो, स्टेबिलिटी हो, सुनिश्चित पावर मिले, क्वालिटी की पावर मिले, ये बहुत सी विषय हैं जिस पर आप चर्चा करेंगे। एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मल्टीपल एजेंसीज कई बार सामूहिकता से नहीं सोचते, अपना अपना सोचते हैं। कभी कभी टकराव आ जाता है, कभी भी ईगो आ जाती है कि मेरा काम है मैं करूंगा, उनको क्या पता। दूसरा कहता है मेरा काम है, दूसरा कैसे घुस गया। गांव के रहने वाले लोग हैं हम, शर्मा जी भी, मैं भी। तो एक गांव में किसान परिवार जैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे सहयोग ले लेते हैं। तो एक किसान उठा अपने पड़ोसी के पास कि चौधरी साहब, मेरा बैल जो है वो बीमार है, आप एक दिन के लिए अपना बैल दे दो, मैं अपने खेत में काम करके आऊंगा ना। हाँ ठीक है चौधरी साहब, आप ले जाओ, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भी ले लूंगा। उन्होंने बैल की हाँ कर दी। थोड़ी देर में इनकी पत्नी उनके घर गई
कि चौधरी साहब आज हमारे घर में मेहमान आया है, हमारे यहाँ दूध नहीं होता, मुझे एक गिलास लस्सी दे दो, मैं मेहमान की ज़रा सेवा ठीक कर दूंगी। तो उसने कहा कि बहन, हमारी भी गाय ने दूध नहीं दिया और आज लस्सी तो नहीं है। ठीक है, वापस आ गई, सिंपल वार्तालाप हुई। अब ये जो लस्सी मांगने गई थी, ये अपने खेत की तरफ काम करने के लिए चल पड़ी। उधर से उस पड़ोसी की जो पत्नी है वो खेत से आ रही थी कि बहन कहाँ गई थी? कि मैं आपके घर होके आई हूँ अभी। क्या था? कि हमें लस्सी की ज़रूरत थी, मेहमान आया था तो चौधरी साहब को मैंने लस्सी मांगी, उन्होंने कहा कि लस्सी नहीं है, लस्सी नहीं थी। चौधरी साहब ने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। चौधरी साहब कैसे मना कर सकते हैं? साथ साथ वो भी आगे चली, ये भी पीछे पीछे। शायद चौधरी साहब ने झूठ बोल दिया होगा, लस्सी होगी, जानबूझ के नहीं दी। ये चल पड़ी कि लस्सी मिलेगी। दोनों घर पहुंचे तो उसने अपने पति से पूछा कि हाँ पड़ोसन आई थी? क्या आई थी? कि क्या हुआ? तो उसने लस्सी मांगी थी, आपने क्या किया? मैंने कहा लस्सी है नहीं। तो है ही नहीं लस्सी, कैसे देता? लस्सी है ही नहीं। क्या आपने मना कर दिया? क्या मना कर दिया? आप कौन होते हैं मना करने वाले? मना करने का अधिकार मेरा है, मना करना था। लेकिन वो कहती मैं आती, आप कहते मेरी पत्नी आएगी, वो लस्सी के लिए तब आना, मैं आती, मैं उससे समझती सुनती, फिर कहती लस्सी नहीं है। मेरा अधिकार आपने यूज कैसे कर लिया? बात बड़ी सिंपल है, लेकिन ये विषय चलते हैं। ऐसे विषयों में मेरा इतना ही सुझाव है कि हमको डिफरेंस एजेंसीज को समन्वय बैठाना चाहिए। समन्वय बैठा करके, मानो किसी दूसरे का काम है, हमारे ध्यान में आ गया कि ऐसे ठीक किया जा सकता है, तो उसको बैठ करके विचार करें कि इसको आप ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर दे। अल्टीमेटली गोल हमारा है सिटीजन्स, हमारा कंज्यूमर, कि सिटीजन को, कंज्यूमर को तकलीफ ना होने दें। सिटीजन की साइकी भी है अपनी, उस साइकी को कैसे ठीक करना है इस पर विचार करना पड़ेगा। वो रूल्स और रेगुलेशन से ठीक नहीं होता। कई बार रूल्स रेगुलेशन में तो ये है कि हाँ बिजली अगर डिफॉल्ट हो गया तो जाओ कनेक्शन काट दो, आ जाओ घर, इससे समस्या हल थोड़ी होगी। नहीं काटोगे तो डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा, 10 साल 22 साल बिल, बिजली का बिल नहीं दिया तो घाटे में चले जाओगे। तो इसके लिए बहुत सी सिस्टम्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मैं फिर हरियाणा का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब I took over in 2014, तो लाइन लॉसेज दे वर ऑफ द ट्यून ऑफ 34%, जो आज घट करके 11.5% आ गए। 34 थे। पता किया क्या क्या है कि गांव के लोग बिजली का बिल भरते ही नहीं है, और तो और गांव के लोगों की प्रेस्टीज बन जाती है, ये जो बिजली का बिल भरता है वो सरकार का चमचा है, शब्द प्रयोग करते हैं कि बिजली का बिल भरने की बात है कोई, बिजली तो मुफ्त की है। और एक पढ़ा लिखा एक नौजवान था गांव का, वो किसी एक थर्मल पावर स्टेशन पर चला गया, तो वो थर्मल पावर जो स्टेशन था वो था एचटीपीसी का, एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का प्लांट था, वो बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था एनटीपीसी। तो दौड़ा दौड़ा गांव में आया, क्या हो बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है? क्यों? बिजली का कोई पैसा लगता नहीं है। लेकिन कैसे नहीं लगता? कि उनके प्लांट के बाहर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ, चलो आओ पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ। तो वहाँ लिखा हुआ एनटीपीसी। तो उन्होंने कहा ये एनटीपीसी का मतलब पता क्या है? नॉट टू पे द कॉस्ट। उसने बना ली कहानी। गांव के लोगों को कुछ भी कहा जाए तो वो कहते हैं हाँ ये लिखा है, ठीक है। फिर समझाया कि भाई कोयला लगता है, पैसा लगता है, इसके अंदर लोगों की तनख्वाहें हैं और खर्चे हैं, कॉस्ट तो आती है इसकी। अच्छा, तो मैं तो गलत समझ गया। फिर वो एक हाइडल प्लांट पर गया, थर्मल से वो हाइडल पर गया, तो हाइडल के बाहर लिखा हुआ है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो क्या पावर प्लांट, पावर कॉर्पोरेशन का। तो देखो देखो, अब वो बदल करके इन्होंने ठीक बोला है। क्या बोला है? इन्होंने लिखा एनएचपीसी, कोई पैसा नहीं देना। क्यों? ये तो मान लिया इन्होंने। क्या मान लिया? इन्होंने लिखा कि नॉट हैव पेड द कॉस्ट। एनएचपीसी। हमारे गांव के अंदर एक बहुत पुराने बुजुर्ग नेता थे, वो कहते हैं देखो बिजली जो है ना, ये जो पानी हम सिंचाई में देते हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, बड़ी हमारे से गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? ये हमें पानी जो है फोका पानी देते हैं। फोका मतलब
बीबीएमबी पर जो पावर प्लांट है वहां से पानी आता है सिंचाई का, कि वहां ये इसमें से बिजली निकाल लेते हैं, पानी की ताकत तो खत्म हो जाती है उसमें, बाकी पानी देते हैं। अब है, आदत है, बिजली का बिल नहीं देंगे। धीरे धीरे मानस बदलना चाहिए, कुछ कंसेशंस देने चाहिए, कुछ रिबेट देने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। स्मार्ट मीटरिंग की बात आई, प्री पेड बिलिंग की, तो मैंने सुझाव दिया प्री पेड बिलिंग के लिए पहले तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में लगा दो, कोई विरोध होगा नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के कॉलोनीज हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको बिल देना ही देना है, उसमें कोई और काम करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट फेज में लगा दो। सेकंड फेज में जो हायर लोड के जितने भी कनेक्शंस हैं, कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, इवन डोमेस्टिक भी, अच्छे वेल जो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है, उन पर लगा दें। फिर लोअर लोड पर जाए और लोअर लोड पर एक उनको कंसेशन देना शुरू करें, रिबेट देना शुरू करें। पंजाब ने 2% किया, हरियाणा ने 5% किया, महाराष्ट्र ने शायद 3% किया, 2% किया। तो इसको कुछ समय के लिए बढ़ाना हो तो बढ़ाएं। छोटा कंज्यूमर उसको थोड़ा सा लालच आएगा कि देखो अगर ये करा दोगे तो 10 रुपया 200 का बिल है, 10 रुपया कम चला जाएगा, 5% भी करेंगे तो, और हमेशा हमेशा करने की जरूरत नहीं है। जब आदत लग जाए लोगों को, ले लो पूरा। एक जमाना था अंग्रेज ने चाय मुफ्त में पिलानी शुरू की थी, रेडियो पर लगा करके, जमाने की बात है। आज वही चाय 20 रुपए 15 रुपए कप से कम नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा सा स्वभाव बदलने के लिए, लोगों को लगाने के लिए इस प्रकार के सिस्टम बनाए। अच्छा कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश को ही मैं अगर देखता हूं तो पिछले कुछ सालों में इनका जो लाइन लॉस है 9 पॉइंट घटा है, 25-26% से शायद 15-16%, 32 से 16 आ गया। अच्छा है, लेकिन और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। अगर हम इम्प्रूव करेंगे और सब काम, जिसको मैं कहूँ कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से अगर होगा, तो हम सर्विस अच्छी दे पाएंगे, घाटे खत्म होंगे, और इन समस्याओं का निदान अगर हम करेंगे तो हमारी रैंकिंग भी जो है वो सुधरेगी। रैंकिंग के थोड़े से इस बार प्रकार बदलने की बात भी आई है कि इस रैंकिंग में थोड़ा सिस्टम बदलवाया जाए। तो जो पैरामीटर, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी यानी प्रदेश हैं उनकी कंपनीज और छोटे प्रदेश उनकी कंपनीज वो compete नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी कैटेगराइजेशन करके भी रैंकिंग की जाए, और जिनकी रैंकिंग अच्छी है उनको सहयोग अच्छा मिलता है, नाम भी होता है। तो हमारा नाम आगे बढ़े, हम कैसे प्रथम स्थान पर आए, इस बात को आगे बढ़ाते हुए सब लोग, चाहे हमारे जनरेटर्स हैं, चाहे हमारे ट्रांसमिट करने वाली कंपनीज हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, सब मिल करके काम करें तो एक बहुत बड़ा काम हम देश के विकसित भारत बनाने के इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम उसमें टूल बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much, Honorable Minister Sir Manohar Lal ji, for your, today we are grateful for having you with us and for this opportunity to hear your insights and vision, and for your leadership, which has been instrumental in driving the policies and initiatives for making India's energy sector sustainable and forward-looking. So a big round of applause again for our chief guest for Distribution Utility Meet inaugural session. Before